Have you come back? How do you read? Loud and clear, sir. Loud and clear, sir. Okay. So let us now find the LMT of the observation. We decided that because it is longitude west, we will have to subtract to get the local mean time. So now what is the local mean time? How do we subtract? (49 minus 48) 0 1 second. 47 minus 41 0 6 minute. Hours. How will you subtract? What will you add in 0 5 to subtract? 24. 24. 24 plus 5 1 minus day. 8, sir. 1 day you will take from there. When you take 1 day, what will become over here? Let's say I write 29, 17, 47, 29, 05. So what will become here? You take 24 hours, 1 28. day. 28. So 20, this will become 29, 29 minus 08 is 21 hour. Correct? And what will we get on this side? 0 1 second, 0 6 hour, 17 minus 8 is 0 9 hour, and date remains 29. So which GMT is correct, you think so? Second one. One on 29 the left or one on the right? Sir, on the right. On the right. on the right. This GMT is correct because this LMT is correct. And why is the LMT correct? Because in the ship date is given 29. The sun is on the east of the meridian, so it is a morning sun. So 09 hours. Whereas if I take this GMT, because even though this looks morning 0547, even though it looks morning and this looks evening as a GMT, but when I come to the local time, it is giving me 21 hours at night. Can there be sun at 21 hours local time? Can you see the sun at 21 hours local time? No, sir. No. So this local time is correct, and hence this GMT is correct. This is what you have to see. In the case of the star and planets, and sometimes, you know, there can be discrepancy. I mean, you have to be a little more alert because they are available in the evenings, night also. Sometimes if the longitude is too much, 160, 170 degrees, then also you have to be very careful because then you are on the border of the dates. So when we come to those examples, we will see. So now one thing is sure, that we have got the GMT. So the GMT is
This is the longitude, and the GMT now is 29 days, 17 hours, 47 minutes and 49 seconds. So this is clear for everyone how to get the correct time. If anyone has any doubt, please ask. Why have we taken out the GMT, by the way? Get GH and declination. HA declination. GH and declination, sir. Because in the almanac, all the times are In GMT, sir. GMT. GMT. yeah, because in the almanac, all the times are GMT. Therefore, we have to take out the GMT. Okay, very good. Any questions, anyone? Before I clean the board. Okay, so let's carry on with the question. So if you remember what we are looking for, you will know what all values we need to take out. We are doing long back cron, so we need to take out angle P. In the formula, what all do we have? We have the latitude and we have the declination. And for LHA, we will need the GHA. Huh? So let us go to the almanac. So take out the almanac, all of you. कौन सी वाली? We have the 92 ही निकालोगे ना? 92 चल रहा है, तुम लोग कह रहे हो? Yes, sir. 92 everyone has got. I thought everyone had 92. Sir, 2008 है sir. 2008 है. और सॉफ्ट कॉपी में नहीं है? Sir, soft copy है. देखा sir. सर उसमें आधे पेज नहीं है जो मेन रहते। सॉफ्ट कॉपी में क्या बुक है? एक सेकंड। सॉफ्ट कॉपी मिल जाएगी कि नहीं मिलेगी कहीं से तुम लोगों को? सॉफ्ट कॉपी मिलेगी कि नहीं? जिसके पास होगी शेयर कर सकते हो आपस में। यस और नो? नहीं तो मैं देखता हूँ, अगर अरेंज होगा तो दे दूंगा। ऑल्सो आई विल फाइंड आउट विच वन टू यूज। चलो 2008 निकाल लो, देखते हैं कितना फर्क आता है। नहीं तो 92 का डेटा मैं बोर्ड में लिख दूंगा तो पता चल जाएगा। व्हाट इज द डेट? So 29th November. 29 नवंबर। मैं स्क्रीन में शेयर कर सकता हूँ बट फिर तुम लोग को बोर्ड नहीं दिखेगा, ये भी चक्कर है। Sir, क्वेश्चन में भी 2008 दिया सर ये। हाँ, वो हमने शुरू में बात किया ना, वी सेड दैट लेट अस डू 92। आप लोगों ने ज़्यादातर सब कह रहे थे कि एग्जाम में 92 आता है तो लेट अस डू एज पर 92। एंड बुक की सॉफ्ट कॉपी तो सबके पास है शायद 92, आइदर हार्ड और सॉफ्ट। सिर्फ सर अभी जो अवेलेबल है उससे करते हैं ना, जो सामने आता है वो तो सेम ही रहेगा। अभी जो अवेलेबल है उससे करते हैं सर, क्योंकि आंसर करेक्शन भी फिर मैच नहीं होएगा जो बुक में रहेगा, तो गलती का ही पता नहीं चलेगा। अभी कौन सा तुम्हारे पास? Yes sir, 92. 2008 है सर। एक्चुअली कितने लड़के हैं 8 और 92 वाले, वो काउंट अगर हो जाए तो पता चलेगा।
वैसे 92 मैं शेयर कर लेता हूँ तुम्हारे साथ बोर्ड पे। सो अगर GHA सन निकालना है, GHA सन, मैं 1 मिनट में तुम्हारे साथ शेयर करता हूँ। तो 29th डे 09 आवर्स, 29th नवंबर 92, 29 नवंबर, क्या टाइम है GMT? 29 days 17 hours. So can you see the screen? Yes, sir. स्क्रीन में देख सकते हो, ये थोड़ा बड़ा कर दूं। 29th डे नीचे 17 आवर्स में क्या है GHA? Plus 77 degrees 52.1 minutes. 077 degrees 52.1 मिनट। ये तो हो गया 29 days 17 आवर का। हमारा इंक्रीमेंट कितने का लेना है? हमें तो 47 मिनट एंड 49 सेकेंड का भी चाहिए ना? यस और नो? यस सर। वो भी चाहिए। और साथ साथ हमको क्या चाहिए फॉर्मूला के लिए? डेक्लिनेशन। The declination. तो डेक्लिनेशन भी साथ में देख लो, ताकि जब हम इंक्रीमेंट में जाएं तो एक ही बार सारा काम कर लें। डेक्लिनेशन कितना? 21 degrees south 36.3. 21 डिग्रीज 36.4 मिनट। 36.1 है कितना? सर 1 लिखा है। 1 लिखा, ठीक है। 21 डिग्रीज 36.1 मिनट साउथ। नाउ बिफोर वी गो टू द इंक्रीमेंट, यहां से हमको क्या नोट करके जाना चाहिए उधर? सर D. इंक्रीज हो रहा है कि Declination डिक्रीज हो रहा है D. सर? देख डी देखना चाहिए। और क्या देखना चाहिए हमको? The इंक्रीज हो declination. रहा है या डिक्रीज? डेक्लिनेशन इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है? यहाँ पर क्या हो रहा है? Increase होगा। increase, इंक्रीज हुआ सर। तो जो डी करेक्शन है उसको हम प्लस करेंगे, यहाँ लिख देते हैं प्लस। इंक्रीज हो रहा है तो जो भी डी करेक्शन होगा हमको उसको ऐड करना है। तो नीचे से, टेबल के नीचे से हम देख लेते हैं डी कितना दिया है। 0.4. डी दिया है 0.4, तो 0.4 डी प्लस होगा। तो आगे चले फिर हम लोग इंक्रीमेंट टेबल में। कौन सा पेज निकालना पड़ेगा? कितने मिनट वाला पेज निकालना पड़ेगा? 47 minutes. 47 मिनट। 47। 47 मिनट वाला निकालना पड़ेगा। थोड़ा टीडीएस है बट प्रैक्टिस हो जाएगा तो तुम फटाफट कर लोगे। ये कंप्यूटर में थोड़ा आगे पीछे ऊपर नीचे तो इसलिए थोड़ा टाइम लग जाता है, अदरवाइज ज़्यादा टाइम नहीं लगता है।
47। तो एक पेज ऊपर जाना पड़ेगा हमको। ये 46 है, राइट साइड 47 है। वो एक्चुअली थोड़ा मैग्निफिकेशन कम कर देता है। 47 आ गया। 47 मिनट में कहाँ देखना पड़ेगा? सर 49 सेकेंड्स। 49 सेकेंड्स, वेरी गुड। 11 डिग्री सन पहले कॉलम में बाद में है? सर पहले कॉलम में। पहले कॉलम में सर। कितना दिया, कितना डिग्री कितना मिनट? 11 डिग्री 57.3 मिनट्स। 11 डिग्री 57.3 मिनट। ये तो ऐड होगा, जीएचए तो बढ़ता ही है ना हमेशा। यस सर। यस सर। 11 डिग्री 56.8 है या क्या है? तुमने 57.3 लिखा है, कहाँ देख रहे हैं? सही देखा वहाँ? 57.3 है सर थोड़ा नीचे करना पड़ेगा। 49 मिनट 49 सेकेंड्स। अच्छा सॉरी 49, ठीक है। 11:57.3 करेक्ट। सो जीएचए कितना हो गया टोटल? ऐड करेंगे 3 and 1 4, 89 डिग्री 49.4 0 कैरी 1 8 9। देखो मैं टैबुलेटेड तरीके से डेसिमल के डेसिमल नीचे कैसे नीटली लिख रहा हूँ, इसी तरीके से तुमको काम करना है। तो जीएचए आ गया 089 डिग्रीज 49। गलत किया मैंने सर 49.4 60 करेंगे 4 9 10 है तो 60 उधर जाएगा तो 4 49.4 मिनट। और डेक्लिनेशन हमारा डी करेक्शन क्या? 0.4 2.3 सर। 0.3 0.4 देखना 47 मिनट में ही है, लेकिन 0.4 का करेक्शन कितना? 0.3। तो हमने पहले देख लिया था इंक्रीज हो रहा है, तो ये हम ऐड कर देंगे। तो फाइनल डेक्लिनेशन क्या आ गया? 36.4 मिनट्स 21 डिग्रीज। 21 डिग्री 36.4 मिनट साउथ। ये नाम देना जरूरी है क्योंकि जब एबीसी टेबल करेंगे हम लोग अजीमत एरर निकालने के लिए, तो उस समय जानना जरूरी है, ठीक है। तो डीआर हमारा क्या है? एज पर द क्वेश्चन लॉन्गिट्यूड लिखा हुआ है और लैटिट्यूड है। ये सब पहले एक शीट में लिख लोगे ऊपर, तो बार बार तुमको इधर उधर रेफर नहीं करना पड़ेगा। 26 डिग्रीज 27 मिनट नॉर्थ। सो जीएचए और डेक्लिनेशन निकालने के लिए किसी को कोई क्वेश्चन है तो पूछो। अभी दो चीजें हमने निकाल ली। हमने जीएमटी निकाल लिया जस्ट टू मेक श्योर कि वो एलएमटी के साथ डेट मैच करती है। जीएमटी शाम दिख रहा है लेकिन एलएमटी तो सुबह था ना। हमको एलएमटी की डेट सही निकालनी है 29, और एलएमटी के टाइम के हिसाब से हमको जीएमटी का डेट और टाइम सब निकालना है। उसके बाद हमने उस जीएमटी से जीएचए और डेक्लिनेशन निकाल लिया, करेक्शन अप्लाई कर लिए। You have helped me in getting the correct answer. I hope everyone is following the almanac and everyone is doing along with us, ताकि सब लोग एक साथ ही चलें। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है? किसी को कोई डाउट है? और फॉर्मूला में लैटिट्यूड और डेक्लिनेशन दिया है। लैटिट्यूड मुझे यहाँ मिल गया है और डेक्लिनेशन यहाँ निकल गया है। और फॉर्मूला में एंगल पी निकालने के लिए कौन सी चीज मिसिंग है? सर ट्रू ऑल्टीट्यूड। ऑल्टीट्यूड सर। ट्रू ऑल्टीट्यूड, सिर्फ ऑल्टीट्यूड मत बोलो, ट्रू ऑल्टीट्यूड, क्योंकि क्वेश्चन में कौन सा ऑल्टीट्यूड दिया हुआ है? एक्सटेंड दिया हुआ रहेगा।
क्वेश्चन में सेक्सटेंट ऑल्टीट्यूड दिया Yes, है sir. ना. Sextant altitude of the sun's upper limb east of the meridian was 28 degree 11 minute. तो हमको तो फॉर्मूला में डालना है ट्रू ऑल्टीट्यूड, तो हमको ट्रू ऑल्टीट्यूड निकालना पड़ेगा. So we will write sextant altitude 28 degrees 11 minute. ठीक दिखाई दे रहा सबको? इंडेक्स एरर है कोई? Yes, sir. इंडेक्स एरर ऑफ द आर के ऑन है? Sir, off the hour है. ऑफ द आर को क्या करते हैं हम लोग? Sir, add करते हैं. ऐड करेंगे. कितना मिनट दिया है? 2.3 minutes. 2.3 मिनट. इसके बाद क्या आ जाएगा? Observe altitude. ऑब्जर्व ऑल्टीट्यूड प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 13.3. 28 डिग्रीज 13.3. नेक्स्ट करेक्शन क्या लगती है? Sir, dip. हाइट ऑफ आई कितना है? Sir, 10 meters. 10 मीटर से कितना टिप होता है चेक करो Sir, 5.6 minutes. टेबल में. डिप इज ऑलवेज Sir, negative. 5.5. इसके बाद क्या आ जाएगा? सर बोर्ड दिखाई नहीं दे रहा है. Sir, आपका स्क्रीन लैग कर रहा है. एक्चुअली ये शेयर किया हुआ ना, इसमें प्रॉब्लम है, इसको बंद कर देता हूँ. अब ठीक है. सेक्सटेंट ऑल्टीट्यूड 28 डिग्री 11 मिनट. इंडेक्स एरर ऑफ द आर 2.3 मिनट प्लस करेंगे. ऑब्जर्व ऑल्टीट्यूड आ गया 28 डिग्री 13.3 मिनट. डिप हमेशा माइनस होता है. 10 मीटर का डिप टेबल से 5.6 आ गया. अब इसके बाद आंसर आएगा अपेरेंट ऑल्टीट्यूड. बोर्ड अब सबको दिखाई दे रहा है और सब लोग कर रहे हैं मेरे साथ या नहीं कर रहे हैं? यस सर. कर रहे हैं सर. जो नहीं कर रहा है वो करो, और जब यहाँ तक पहुँच जाओ अपेरेंट ऑल्टीट्यूड तो बोलो, फिर मैं आगे बढ़ूंगा. पहुँच गया वहां तक? यस सर. So what is the apparent altitude? Sir, 28 degrees 7.7 minutes. 28 degrees 07.7 minute. Earlier we had done in the class, we had applied how many corrections? इसके बाद क्या क्या correction apply करना है? The refraction. Refraction, parallax, semi-diameter. But I had told you वो theoretical था. When we do practical navigation, we will go for the total correction. टोटल करेक्शन. So total correction वाला पेज निकालो, जो सबसे पहला पेज है तुम्हारा. मैं एक सेकंड दोबारा शेयर कर लेता हूँ, जिसके पास नहीं है वो देख सकता है.
टोटल करेक्शन सबसे पहले दिया है ना 10 डिग्री टू 90 डिग्री वाला जो सेक्शन है, हमारा अपेरेंट ऑल्टीट्यूड कितना है? सर 28 28 डिग्री 07.7। तो कितना होगा करेक्शन? minus 17.8 minutes. लोअर लिम्ब है या अपर लिम्ब है? सर upper limb. अपर लिम सर। क्वेश्चन में अपर लिम्ब है तो ध्यान रखना, सिलेक्ट द करेक्ट कॉलम। लोअर लिम्ब में प्लस हो रहा है एरर और अपर लिम्ब में माइनस हो रहा है। सो 2807.7 correction which we get is minus 17.8 minutes. minus 17.8 minute. So total correction upper limb लिख देना जरूर, minus 17.8। इससे हमको क्या मिलेगा? सर true altitude. ट्रू ऑल्टीट्यूड। क्वेश्चन में ट्रू ऑल्टीट्यूड चाहिए था, तो अब हमको मिल जाएगा ट्रू ऑल्टीट्यूड। I will cancel the screen. Can you see the board now? Apparent altitude 2807.7. Total correction upper limb minus 17.8. The true altitude will be 27 डिग्री 49.9 मिनट्स। (27 degrees 49.9 मिनट। तो ये वैल्यू कैसे आई है सबको मालूम पड़ गया? किसी को कोई डाउट है? एनी क्वेश्चंस एनीवन हैज? प्लीज आस्क नाउ। I hope everything is clear for everyone. तो अभी हमारे पास कितना डेटा जमा हो गया? Let us write GHA तो ये है, इसको कॉपी कर लेते हैं। GHA मेरे पास हो गया है 089 डिग्रीज 49.4 मिनट। डिक्लिनेशन हो गया है 21 डिग्रीज 36.4 मिनट साउथ। ट्रू ऑल्टीट्यूड हो गया 27 डिग्रीज 49.9 मिनट। तो फॉर्मूला के हिसाब से मेरे पास सारा इंफॉर्मेशन आ गया। लैटिट्यूड, डिक्लिनेशन, ट्रू ऑल्टीट्यूड आ गया या नहीं आ गया? जो फॉर्मूला मुझे यूज करना, भी कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे हम लोग? cos p cos p। फॉर्मूला लिखाएगा कोई मेरे को? फॉर्मूला जरा लिखो, किसको याद है तो। Sir cos p is equals to cos p is equal to sine of true altitude sin of true altitude minus plus. इस केस में क्या होगा? सर प्लस होगा। प्लस क्यों होगा? सर दोनों लैट और डेक्लिनेशन का नेम डिफरेंट है। लैट एंड डेक ऑपोजिट नेम। डेक साउथ है, लैट नॉर्थ है, तो हम लोग यहाँ प्लस लगाएंगे। वेरी गुड। आगे सर साइन ऑफ लैट इंटू साइन ऑफ डेक।
साइन लैट इंटू साइन डेक। अपॉन सा- cos सारे lat साइन ऊपर हैं, सारे साइन ऊपर है, नीचे कॉस है। कॉस लैट cos deck कॉस डेक। अब हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं फॉर्मूला में। कॉस पी इज इक्वल टू साइन ट्रू अल्टीट्यूड क्या है? साइन 27 डिग्रीज 49.9 मिनट प्लस साइन लैटिट्यूड 26 डिग्रीज 27 मिनट इंटू साइन 21 डिग्रीज 36.4 मिनट अपॉन cos latitude is 26 degrees 27 minute into cos dec 21 degrees 36.4 मिनट। किसी को फॉर्मूला या उसके एप्लीकेशन में कोई डाउट है? समझ आ गया सबको या नहीं? आप लोग साइंटिफिक कैलकुलेटर से करके इसका आंसर निकाल सकते हो सब लोग या नहीं? या टेबल यूज करोगे या कैलकुलेटर? तो आई एम श्योर यू नो हाउ टू यूज द कैलकुलेटर। यूज करो जरा, निकालो। अगर सर जिस पीक वैल्यू आ रही है 40 डिग्रीज 43.2 मिनट्स। कॉस पी नहीं सर पी की वैल्यू पी की वैल्यू कितनी आ रही है? तो 40 डिग्रीज 43.2 मिनट्स। 40 Yes, डिग्री sir. 43.2 मिनट। 40 degree 43.2 minutes. तो किसी को यूज नहीं करना आता कैलकुलेटर? उस दिन मुझे लग रहा था एक दो लोग फंबल कर रहे थे, तो प्लीज सीख लो और इसमें भी स्पीड डेवलप करना ताकि तुम्हारा आंसर करेक्ट आए। अगर नहीं आएगा तो फिर कोई फायदा नहीं है कैलकुलेटर यूज करने का। ये पहले चॉइस सो कॉस पी का वैल्यू आता है, कॉस पी इज इक्वल टू 0.757907 लिखा है यहाँ बुक में, लेकिन 86 ऐसा कुछ आ रहा है। सो एंगल पी विल बी इक्वल टू cos inverse of that value angle P will be equal to 40 degrees 43.2 minutes. Yes, sir. Angle P is equal to 40 degree into 43.2 minute। तो मैंने भी अभी कैलकुलेटर से करके देख लिया, ठीक है आंसर। कोई है जिसका आंसर नहीं आया या कोई गलत आया या कोई डाउट है? सर यही आ रहा है। आ रहा है सबका? चलो ठीक है। तो एक और वैल्यू हमको मिल गई, एंगल P इज इक्वल टू
40 degrees 43.2 मिनट। सो मिटा दूं बाकी का कैलकुलेशन फिर, ओके सर। जो चाहिए था वो हमको मिल गया, एंगल पी। तो क्वेश्चन में क्या निकालना है हमको, क्या लिखा है क्वेश्चन में? फाइंड आउट व्हाट? Sir, observed long. We have to find out, calculate the direction of the position line and the position through which it passes. Position through which it passes तो observe long से निकलेगा, और direction of the PL Sir, azimuth निकाल. जहाज पे तो बेरिंग ले लेते हैं, कंपास एरर निकाल के कर लेते हैं ट्रू एजिमथ। यहाँ तो हमको ट्रू एजिमथ निकालना पड़ेगा ना, Yes, sir. है कि नहीं? वो ABC टेबल से या कैलकुलेटर से वो हम निकाल लेंगे ट्रू एजिमथ। तो सबसे पहले हम लोग ऑब्जर्व लॉन्गिट्यूड निकाल लेते हैं। यहाँ पर एंगल P आ गया 40 डिग्री 43.2। LHA क्या होगा? Sir, 360 minus angle P. ये क्यों होगा ऐसा? 360 माइनस, वो पूरा रैशनल होराइजन डायग्राम नहीं बना के मैं और एक सिंपल सा डायग्राम बना देता हूँ थोड़ा सा। ये ऑब्जर्वर है, बॉडी राइजिंग है, तो बॉडी ईस्ट में होगी ना। Yes, sir. बॉडी राइजिंग है तो बॉडी इधर कहीं ईस्ट में है, Z है तो इधर पोल होगा, PZX। तो LHA जो होगा, अगर ये हमारा एंगल P निकल गया है तो LHA ये एंगल होगा, इज इक्वल टू 360 डिग्री माइनस एंगल P। LHA इस केस में कितना आ जाएगा? Sir, 319 degrees 16.8 minutes. So 360 degrees 00.0 minute minus 40 degrees 43.2 minute will give you LHA ठीक है। Yes, sir. 9 degree LHA is equal to 319 degrees 16.8 मिनट। GHA हमने कहीं निकाला था पहले, GHA कितना था? Sir, 89 degrees 49.4 minutes. 89 degrees 49.4 मिनट। तो अब लॉन्गिट्यूड कैसे निकलेगा? LHA से GHA अगर हम निकालेंगे तो लॉन्गिट्यूड कैसे निकलेगा? LHA फॉर्मूला क्या था? LHA इज इक्वल टू GHA Plus माइनस वेस्ट प्लस लॉन्ग माइनस लॉन्गिट्यूड। प्लस ईस्ट माइनस वेस्ट लॉन्ग। तो LHA इज इक्वल टू GHA माइनस वेस्ट लॉन्गिट्यूड आया। सर कैसे? क्या फॉर्मूला था? सर ये तो था, बट कैसे पता चलेगा कि वेस्ट है कि ईस्ट है? क्या चीज? DR है ना तुम्हारे पास? अच्छा हाँ सर, ठीक ठीक। DR से तुमने कैसे किया? सर वही मुझे समझ नहीं आ रहा था कि प्लस करेंगे माइनस करेंगे। LHA से तो GHA माइनस करोगे। हाँ सर, वो तो समझ में आया। अब तुम वेस्ट लॉन्गिट्यूड को यहाँ लाते हो तो GHA से LHA माइनस करोगे। कोई एक मेथड पकड़ लो। तो अगर मैं इसको ऐसे करता हूँ, वेस्ट लॉन्गिट्यूड इज इक्वल टू GHA माइनस LHA, ऐसे हो सकता है ना? फॉर्मूला तो ठीक है। यस सर। तो जिस तरीके से तुमको कंफर्टेबल लगता है, थोड़ा एक दो आगे पीछे तुमको करना पड़ेगा।
पहले ऐसे कर लेते हैं, फिर दूसरे मेथड से करके देख लेते हैं। LHA माइनस GHA अगर हम करते हैं तो कितना आता है? Sir, 229 degrees, 27.4. टू टू 9 डिग्री 27.4 मिनट। तो लॉन्गिट्यूड तो ऐसे नहीं होता है ना? Yes, sir. होता है क्या? No, sir. Less than तो ये 180 क्या होता लगता है है। तुमको? सर GHA माइनस LHA हाँ? का क्या करेंगे सर? ये तुमको क्या लगता है फिर किस तरीके से निकलेगा? क्योंकि लॉन्गिट्यूड तो DR के 180 आसपास माइनस तुम्हारा, कर दो सर। लॉन्गिट्यूड तो DR के आसपास आना चाहिए तुम्हारा। Yes, sir. हाँ, 130 डिग्री 27 है, 2-4 माइल 10 माइल आगे पीछे होना चाहिए, इससे ज्यादा तो फर्क नहीं आना चाहिए। और तुमको ये भी नहीं समझ आ रहा ईस्ट है कि वेस्ट है। तो ये तो अगर उस फॉर्मूला के हिसाब से जाएं तो ईस्ट लॉन्गिट्यूड लग रहा है, Yes, sir. क्योंकि अगर हम प्लस माइनस साइन को हम नहीं देखना चाहें तो मान लो अगर मैं सिर्फ ऐसे लिख दूं LHA इज इक्वल GHA प्लस लॉन्गिट्यूड, या तो इससे तो तुमको लगेगा कि ईस्ट है। लेकिन अगर हम लॉन्गिट्यूड वाला एक डायग्राम बनाएं, ये 0 डिग्री ग्रेनिच है, तो तुम 229 अगर इधर चले गए तो 180 हो गया। ये 180 से आगे कितना गए? तो सर वो उल्टा स्टार्ट हो जाएगा वेस्ट वाला। 49 डिग्रीज 27.4 गए ना? है Yes, ना? sir. तो वेस्ट नापोगे तो कितना आ जाएगा? अगर वेस्ट लोगे तो कितना आ जाएगा? Sir. अच्छा है सर। 180 से ये 49 27.4 माइनस करो, सर 130 डिग्री सर 130 डिग्री 130 32.6। 32.6 सर एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दिएगा ये। ये वाला पॉइंट थोड़ा है क्रिटिकल कि DR है तुम्हारे पास तो तुम्हें आइडिया है तुम कहां पर हो, लेकिन मान लो DR होता है 179 डिग्रीज 45 मिनट, तो तुम क्या करते? या DR होता है 179 डिग्री 55 मिनट, तो इधर भी हो सकते तो उधर भी हो सकते हो, है ना? तो इसलिए ये कैलकुलेशन है, वर्किंग थोड़ा समझना जरूरी है। LHA से GHA माइनस करते हो 229 आया, 229 तुम ईस्ट लेके मान लो इधर चले तो 180 के आगे बढ़ गए। कितना आगे बढ़े? 180 माइनस किया तो 49 डिग्री 27.4 इधर बढ़ गए, लेकिन ये तो वेस्ट आ गया। तो इसका लॉन्गिट्यूड निकालने के लिए 180 से मैं अगर 49 27.4 माइनस करूं तो ये आ जाता है। दूसरा तरीका क्या है कि सीधा 360 से हम माइनस कर दें तो कैसा रहेगा? मेरा लॉन्गिट्यूड आया 229, अगर डायग्राम से कंफ्यूजिंग लग रहा है तो 360 से अगर मैं माइनस कर दूं तो कैसी रहेगी? तो एग्जैक्ट आएगा। हाँ, आ जाएगा 6 पॉइंट, सर 32 हाँ 32 so 130 डिग्रीज। क्योंकि तुमने 360 से माइनस किया तो इसको रिवर्स वेस्ट कर दो, ईस्ट सोच के अगर चल रहे हो तो वो एक कन्वेंशन है, ईस्ट लेके चलो। इसको उस तरीके से भी हम लोग थोड़ा सोच सकते हैं कि जैसे मैंने बताया
अगर तुम्हें पता है dr से वेस्ट लॉन्गिट्यूड है और फॉर्मूला ये सिंपल अरिथमेटिक है, तुम सारे साइंस के स्टूडेंट हो और काफ़ी अच्छे नॉलेजेबल हो, जिस तरीके से भी सोच लो डायग्राम से फॉर्मूला से। फॉर्मूला था हमारा LHA इज इक्वल टू GHA प्लस ईस्ट माइनस वेस्ट लॉन्ग, यू नो योर DR माइनस वेस्ट लॉन्ग। अब मैं अगर वेस्ट लॉन्ग को पॉजिटिव रखता हूँ, वेस्ट लॉन्गिट्यूड इज इक्वल टू GHA माइनस LHA, यहाँ तक ठीक है फॉर्मूला? यस सर। तो GHA माइनस LHA क्या है मेरा? 089 डिग्रीज 49.4 मिनट। LHA कितना था? 319 319 16.8 minutes. 16.8 मिनट। लेकिन जब ऐसे नहीं कर सकते तो हम क्या करते हैं फिर? सर 360 तक कर सकते। GHA में 360 ऐड कर देंगे ना? यस सर। GHA में 360 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 449 449 हो जाएगा। अब माइनस करो, वन 30 डिग्री 32.6। ये तो वेस्ट लॉन्ग है ही है यहाँ पर, तो वेस्ट ही आएगा ना फिर। फॉर्मूला में तो तुमने वेस्ट लॉन्ग ले आए हो, अब जो आंसर आएगा तो वेस्ट ही आना है। कौन सा तरीका ठीक लगा, ये वाला या पहले वाला? सर पहले वाला। यही ठीक है। यही ठीक है। 180 से ज्यादा अगर लॉन्गिट्यूड आ रहा है तो डायरेक्ट 360 से यही वाला ठीक है सर। किसी को वो ठीक लगेगा, किसी को ये ठीक लगेगा। मैं ये नहीं बोलूँगा कि तुम्हारा गलत है सही है, जैसे ठीक लगता है वैसे पकड़ लो, समझ लो। समझ लिया तो उसको पकड़ के रखो। सर ये फॉर्मूला जो है LHA इज इक्वल टू GHA माइनस वेस्ट लॉन्ग, तो वो पहले वाला लॉन्गिट्यूड है उसके बेसिस पे निकालना है सर, उसके डायरेक्शन के। फॉर्मूला है दोनों, LHA तो GHA प्लस ईस्ट यस सर। और वेस्ट और माइनस वेस्ट। यस या तुम ये लेके चलोगे और या तुम ये लेके चलोगे, तो ये सर नीचे वाला लेके चलेंगे वेस्ट, तो क्योंकि तुम्हारा DR वेस्ट है ना, DR वेस्ट है ना यस सर, तुम्हारा, यस सर, यस वही पूछ रहा हूँ। इसीलिए तो तुम चल रहे हो ना। तुम्हें तो DR तुम्हारा मालूम है। अगर DR नहीं मालूम है तो वो पिछली बार जैसे मैंने किया, ईस्ट लेके चलो क्योंकि प्लस है, तो फिर रिवर्स आ जाता तो तुम समझ जाओगे वेस्ट है। तो अभी कंप्लीट नहीं हुआ, अभी तो हमने ABC नहीं किया। पहले ये बोलो, अगर हो गया तो आगे बढ़ूं। अगर नहीं भी समझ आया तो ज्यादा टेंशन मत लो। सर अगर इसमें DR नहीं दिए, मतलब अगर हमारे पास डायरेक्शन नहीं होता लॉन्गिट्यूड का, जैसे सर वो पहले क्वेश्चंस थे जिसमें SHA GHA से हमें लॉन्गिट्यूड निकालना होता है, तो उसमें कैसे सर डायरेक्शन पता करेंगे लॉन्गिट्यूड? दोबारा बोलो। सर ये तो लॉन्ग बाय क्रॉन है, इसमें ठीक है DR दिया हुआ है तो हमें लॉन्गिट्यूड मिल गया अपना, वेस्ट है। सर वो जो क्वेश्चन हम लोग करते थे SHA GHA वाले, जिसके थ्रू हम लोग को कभी कभी लॉन्गिट्यूड पूछा जाता था, तो उसमें सर कैसे डायरेक्शन निकालेंगे? उस वाले में या इस वाले में? सर उस वाले में अगर हमारे पास GHA LHA आ गया है तो हमें लॉन्गिट्यूड निकालना है, तो वो कैसे निकालेंगे? वो जब तुम इक्विनोक्शियल डायग्राम बनाओगे तो समझ जाओगे GHA किधर है। कुछ तो इंडिकेशन दिया होगा ना क्वेश्चन में, ताकि तुम निकाल सको आंसर। LHA वाला अगर जो आवर एंगल वाला कोई क्वेश्चन होगा इस तरीके से तो ले आना, फिर कर लेंगे। G का रेफरेंस पॉइंट तो तुम स्टार्टिंग बना ही देते हो ना, G से स्टार्ट करते हो ना। GHA तो तुम निकाल ही लेते हो। GHA का क्या मतलब है? तुम थोड़ा सा ग्रीनविच टू द गए हो, मैं तुम्हें बताता हूँ। अगर GHA तुमने निकाल लिया तो कुछ तो तुम्हारे पास इंडिकेशन होगा क्वेश्चन में निकालने का। मान लो ये G है
ये सन बॉडी हम बना लेते हैं, मान लो, है ना। ये GHA सन हो गया, यही कहना चाह रहे हो, है ना। LHA अगर होगा, LHA होगा तो तुम निकाल लोगे। जैसे हमने कैसे वो सबसे पहले दिन कैसे समझाया था, अगर ये ऑब्जर्वर 1 है और ये ऑब्जर्वर 2 है, फॉर्मूला तभी बना था ना। ये LHA 1 बनता है। इस केस में LHA इज इक्वल टू GHA प्लस ईस्ट लॉन्गिट्यूड। और इस केस में क्या बनता था, LHA इज इक्वल टू GHA माइनस वेस्ट लॉन्गिट्यूड। फॉर्मूला तो ऐसे ही बना था ना, अगर तुम्हें याद होगा तो। यस सर। तो क्वेश्चन जो भी मिलेगा सॉल्यूशन के लिए, तुम्हें उतनी डेटा तो दी होगी कि तुम जो निकालने को बोल रहा है वो निकल जाएगा। अगर कोई क्वेश्चन ऐसे आता है तो ले आना, या देख लेंगे। ऑफ एंड आई एम नॉट एबल टू एग्जैक्टली टेल यू, तुम्हारा क्वेश्चन मेरे को थोड़ा समझ नहीं आ रहा है। बट इज दिस व्हाट यू आर ट्राइंग टू रेफर टू? ये डायग्राम मैंने बनाई है। कि अगर हमारे पास सिर्फ GHA और LHA दिया हुआ है, और सर हम डिटरमाइन कैसे करेंगे कि लॉन्गिट्यूड वेस्ट आएगा कि लॉन्गिट्यूड ईस्ट आएगा? जैसे अभी तो हमें पता था कि TR वेस्ट है, तो कुछ सर तो हम दिया होगा ना क्वेश्चन में, कोई ऐसा क्वेश्चन है तो बताओ। ऑफ एंड मेरे को ऐसे कुछ याद नहीं आ रहा। GHA दिया है और LHA दिया है, हाँ तो ठीक है, कर सकते हो ऐसे। नहीं सर, मान लीजिए यही वाला क्वेश्चन है। नहीं नहीं ठीक है, समझ गया मैं। 360 माइनस LHA क्या होता है? चलो मान लो मुझे नहीं पता है ऑब्जर्वर कहाँ है, कोई एक फिगर बोलो जो तुम्हारे मन में आती है। ये GHA दिया है, ठीक है। तो यही वाला ले लेते हैं जो अभी हाँ ले क्वेश्चन में लो, दिया हुआ हाँ है। यही वाला ले लो, GHA दिया हुआ है। ये GHA कितना है अंदाजा? ये सर सर GHA 210, 220। 220 ले लो, GHA इज इक्वल टू 220। LHA बोलो, कुछ भी बोल दो। 320। 320। LHA कहाँ से कहाँ होता है? सर ऑब्जर्वर से वेस्टर्ली टिल द हेवनली बॉडी। ऑब्जर्वर तुम्हें पता नहीं है तो तुमको समझ नहीं आ रहा कहाँ से बनाना है, ठीक है, यही क्वेश्चन है ना तुम्हारा। यस सर। ओके, 360 माइनस LHA क्या होता है? EHA। EHA कितना है? सर 40 डिग्रीज। 40 डिग्री। 40 डिग्री में ईस्टर्ली आवर एंगल जा सकता हूँ सन से? यस सर। ये 40 डिग्रीज है। GHA था तुम्हारा 220 और LHA 320, तो ये 100 डिग्रीज हो गया। बन गया 360 टोटल कि नहीं? अगर LHA 320 है तो मैं यहाँ से रिवर्स भी तो 320 जा सकता हूँ कि नहीं जा सकता हूँ? यस सर। इधर से नहीं जाने के बजाय मैं इधर से 320 चला जाता हूँ। LHA 320 है, हाँ, 180, 270 और आगे थोड़ा 320, तो बाकी का कितना बचा? 40 डिग्री। तो लॉन्गिट्यूड क्या निकला मेरा? लॉन्गिट्यूड कितना निकला? थोड़ा वो
डायग्राम और प्रोपोर्शनेटली बना देता हूँ तो शायद तुम थोड़ा ज़्यादा पकड़ लोगे। जी 180 220 था ना? यस सर। GHA इज इक्वल टू 220। अब ठीक है, ये 180 और 30 220 हो गया। किसने क्वेश्चन पूछा था, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? GHA अगर ये 220 है, LHA 320 में कहाँ बनाऊंगा? इधर से रिवर्स जा सकता हूँ ना मैं 320 की नहीं? यस सर, जा सकते हैं। ताकि ऐसे भी तो 320 आना, तो 100 डिग्री मेरे को और इधर जाना पड़ेगा। ऑब्जर्वर 1 220 100 डिग्री और जाना है, 90 और 10 डिग्री। अब अगर मैंने रिवर्स 320 बना दिया तो इधर से भी जाऊंगा तो 320 होगा ना, कि नहीं होगा? तो अगर ये 220 है ब्लैक वाला, तो मैं इधर कितना डिग्री गया हूं? 100 डिग्री गया हूं ना, तो लॉन्गिट्यूड क्या हुआ इसका? सर 100 वेस्ट। इधर वेस्ट होता है या ईस्ट होता है? सर ईस्ट। 100 ईस्ट हो गया ना। और वही मैंने पहले बोला था कि अगर LHA 320 है तो ईस्टर्ली आवर एंगल 40 हुआ, तो तुम इसके वेस्टवर्ड नहीं जाना, तो ईस्टर्ली साइड 40 चले जाओ, रिवर्स चले जाओ। ऑब्जर्वर से ईस्ट 40 डिग्री जाना ना मैंने, ईस्टर्ली आवर एंगल 40 है, तो ऐसे 40 करो, ऐसे 40 करो। ये तो खाली मेजरमेंट वाली बात है और तो कुछ नहीं है। सर ये कंपेयर भी कर सकते हैं ना, जैसे LHA अगर GHA से बड़ा है तो लॉन्गिट्यूड ईस्ट ही होगा। LHA GHA से बड़ा है तो लॉन्गिट्यूड ईस्ट होगा। तो फॉर्मूले के हिसाब से जैसे हाँ, बॉडी अगर इधर है, बॉडी अगर इधर है तो डिपेंड करेगा। जैसे मान लो ऑब्जर्वर इधर है, ऐसे ऐसे तुमको मिलेंगे वो सिचुएशंस जो तुम्हें डायग्राम बना के समझ पड़े। मान लो ये क्या है, बॉडी ऑब्जर्वर क्या बनाऊं? ऑब्जर्वर बना देता हूं, और बॉडी में यहां बना देता हूं सन। अब बताओ क्या है LHA GHA? ये तो GHA है। GHA 20 डिग्री, LHA कितना है? सर 300 के आसपास। ज्यादा होगा, ये तो 30 डिग्री लग रहा है मुझे। या चलो सर 40 ले लो, 320 330 ले लो। 40 ले लो, 320 डिग्री। LHA 320 डिग्री। अब क्या लग रहा है तुमको, क्या होना चाहिए? क्या क्वेश्चन है तुम्हारा, पूछो। जवाब मिल रहा है इसमें, नहीं मिल रहा है? GHA 20, LHA 320। GHA 20, LHA 320। Are you getting your answer straight away? जो LHA माइनस GHA कुछ कह रहा था? यस सर। क्या हो रहा है? जवाब मिल रहा है, नहीं मिल रहा? नहीं मिल रहा होगा ना, कुछ फिगर आउट तुमको करना ही पड़ेगा ना, या डायग्राम से या
फॉर्मूला में था 360 दोबारा लगा के। तो वही मैं कह रहा था कि स्केच बना लो तो यू कैन वेरी इजीली फिगर आउट क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। और या बिल्कुल फॉर्मूले से चलना तो यू शुड बी वेरी श्योर ऑफ 360 डिग्रीज। तो ठीक है, लेट्स ब्रेक फॉर लंच, विल कंटिन्यू विद दिस। अभी ABC निकालना बाकी है, क्योंकि ऑब्जर्व लॉन्ग तो हमारा निकल गया है शायद, लिखा नहीं मैंने, मिटा दिया, तुम्हारे पास होगा। ऑब्जर्व लॉन्ग तो हमने निकाल लिया, अभी हमको डायरेक्शन ऑफ द PL निकालना है। ये चलो जैसे जैसे आते जाएंगे तुम्हारे मन में क्वेश्चन करते रहेंगे हम लोग, ये आवर एंगल वाले। तो कई क्वेश्चन आते हैं जो थोड़े से क्रिटिकल होंगे, नो प्रॉब्लम। तो अभी हमारा ऑब्जर्व लॉन्गिट्यूड क्या निकला? 130 डिग्री 32.6 वेस्ट। 130 डिग्री 32.6 मिनट वेस्ट। तो इतनी इंफॉर्मेशन अब हमको मिल गई है। अब हमको ABC करके एजीमथ निकाल के ±90 करके पोजीशन लाइन निकालना है। ठीक है, सो ये फर्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग, डोंट वरी, इतना कॉम्प्लिकेटेड और इतना मुश्किल नहीं है। वंस यू स्टार्ट डूइंग इट एंड गेटिंग यूज्ड टू इट, फटाफट हो जाएगा। 20 मिनट में तुम सारा काम कर लोगे, डोंट वरी। सो ओके, देन लेट्स ब्रेक फॉर लंच। थैंक यू सर।